Hello, my dear friends. I hope you guys are doing good. Welcome to the seventh lecture of acids, bases, and salts. Friends, we have studied till now about acids and bases in detail. In the previous lecture, we have studied about pH. And today, in this lecture, we are going to study salts. In the first lecture of acid, bases, and salts, we have seen the definition of salts. So now let us try to recall the definition that what we have seen earlier. So students, we have seen earlier that salts are those chemical compounds or substances which are produced after the reaction between an acid and a base, and the reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. Or salt can also be defined as a salt is a chemical compound produced when the hydrogen in an acid is replaced by a suitable element. ठीक है, यानी कि किसी एसिड में से अगर उसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए बाय ए सुटेबल एलिमेंट, सो जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो कहलाएगा सॉल्ट. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट. सो सम ऑफ द कॉमन salts are sodium chloride, NaCl, magnesium chloride, MgCl2, ammonium chloride, NH4Cl, zinc sulfate, ZnSO4, aluminium sulfate, Al2SO4 whole thrice. I hope this is clear. So these are the common examples of salt. Now one thing you should note that, एक note लिखिए, that while naming any salt, the first portion of any salt comes from the alkali or the base. ठीक है, and the next portion or the last portion of the salt comes from the acid. और in terms of ions, the cationic portion, ठीक है, कोई भी सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है क्योंकि वो एनायन एंड कैटायन से मिलकर के बना होता है. देन द कैटायन पार्ट कम्स फ्रॉम द अल्कली एंड द एनायन पार्ट कम्स फ्रॉम द बेस. इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. दैट व्हेन ए बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with any acid HCl, then the salt produced is NaCl. ठीक है, along with this water is also produced. now देखो सोडियम क्या है, बेस का पार्ट है, यहां से Na+ निकलता है. ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द अल्कली और द बेस. और फिर HCl में से क्या निकला, Cl- विच इज द पार्ट ऑफ द एसिड, है ना. किसी भी सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेस से आता है या फिर अल्कली से आता है ना, और जो सेकेंड पार्ट है वो आता है एसिड से. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में कॉन्सेप्ट क्या है, that the salts which is having same type of positive ions or cations and the same type of negative ions or the anions are considered in a particular family. इसे हम थोड़ा डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं, so आपको ये क्लियर हो जाएगा. that let's suppose the salts of HCl, the salts which are produced from the HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको कहा जाता है क्लोराइड्स. क्लोराइड्स क्यों कहा जाता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं. NaCl, MgCl2, है ना, उसी तरह से ZnCl2, ठीक है, CaCl2. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोराइड. ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, लेकिन ये सारे सॉल्ट्स किससे प्रोड्यूस हुए हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोड्यूस हुए हैं. जैसे कि MgCl2 के लिए देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacts with HCl, प्रोड्यूस क्या करता है, magnesium chloride MgCl2, along with this water is also produced. Similarly calcium hydroxide, ये देखते हैं, calcium hydroxide when reacts with HCl, then calcium chloride plus water is produced. so देखो दोनों केस में एसिड क्या है, सेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो जो सॉल्ट है जो कि HCl से प्रोड्यूस हुए हैं उनको कहा जाता है क्लोराइड्स.
सिमिलरली वैसे सॉल्ट्स जो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस हुए हैं उनको कहा जाता है सल्फेट। सल्फेट है ना, सल्फेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके अलावा क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इसमें से किसी एक का एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से मैग्नीशियम का ही देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द बेस, reacts with the H2SO4 which is acid and it forms magnesium sulfate MgSO4। along with this water is also produced। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। आप ये सारे कंपाउंड्स को इस तरह से एलाबोरेट करके चेक कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सो द सॉल्ट्स ऑफ H2SO4 is called as sulfates, salts of HCl is known as chlorides। Similarly, the salts of nitric acid HNO3 is known as nitrates। नाइट्रेट्स एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaNO3 है ना, और क्या हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 आर नोन एज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, दी सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH आर कॉल्ड एज एसीटेट्स। एसीटेट्स है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम एसीटेट CH3COONA। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, जैसे कि कार्बोनेट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स। दीज सॉल्ट्स आर द, फैमिली का नेम क्या है, कार्बोनेट्स, एंड दीज सॉल्ट्स आर द एग्जांपल ऑफ द कार्बोनेट्स। नाउ अगर जिस तरह से एसिड के लिए हुआ है उसी तरह से बेस के लिए भी होगा। सो द कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द सेम बेस, लेट्स से सोडियम NaOH है ना, इसमें क्या होगा, सेम कैटायन ऐड होगा इन द कंपाउंड, वो कहा जाएगा सोडियम सॉल्ट्स। सोडियम सॉल्ट्स एग्जाम्पल NaCl Na2CO3 है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, Na2SO4। देखो ये सारे के सारे में सेम कैटायन है। इसी तरह क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी हो सकता है, उसे कहेंगे मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट है ना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, MgCl2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। ठीक है, MgCl2 हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है MgSO4। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ वन थिंग यू शुड नोट फॉर सॉल्ट्स दैट व्हेन एनी सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, सो आपको पता है सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है बिकॉज आयन से मिलकर के बना है। सो व्हेन ए सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देन इट प्रोड्यूसेस आयंस। ठीक है, प्रोड्यूसेस आयंस। अब जब ये आयंस प्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा एंड देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान रखना है दैट दिस सॉल्ट सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। So students, salt solutions can be of three types. The first one will be neutral, neutral हो जाएगा। ठीक है, the second one will be acidic and the third one will be basic salt solution। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहले एसिडिक समझते हैं। ठीक है, एसिडिक कहने का क्या मतलब है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक कब होता है, जब उसमें H+ डिजॉल्व हाइड्रोजन आयन का जो अमाउंट है उसमें ज़्यादा होगा, देन वो एसिडिक कहलाएगा।
ठीक है। बेसिक किसे कहेंगे? जब उसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस का अमाउंट ज़्यादा होगा डिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। न्यूट्रल किसे कहेंगे? जब H प्लस और OH माइनस इसमें दोनों बराबर अमाउंट में होगा तो इसे न्यूट्रल कहेंगे। यानी कि क्या, इसका जो pH है वो 7 होगा, इसका pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा, एंड बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन का pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है। और अगर इसे हम लिटमस पेपर के इस्तेमाल से टेस्ट करेंगे तो ये नो कलर चेंज शिफ्ट करेगा, मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द कलर, बट ये क्या करेगा? रेड कलर को शो करेगा, ये ब्लू कलर को शो करेगा, सिंस इट इज बेसिक। नाउ अब ये कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल कैसे होता है, एसिडिक कैसे होता है, या फिर बेसिक कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे कि HCl, वन रिएक्ट्स विद किसी स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH, ठीक है। देन इस केस में जो सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा? NaCl एंड वाटर। ये रिएक्शन हमने कई बार देख लिया, तो आई होप इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। HCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट प्रोड्यूस किए। नाउ ये जो सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, जो ये सॉल्ट बना है ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका एसिडिक पार्ट है और बेसिक पार्ट आपस में न्यूट्रलाइज कर गए हैं। सो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आप प्रोड्यूस करोगे बाद में तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है। एसिडिक कौन से होंगे? मान लेते हैं दैट एनी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ ए वीक बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे HCl रिएक्ट करता है किसी वीक बेस से, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वीक बेस। जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा NH4Cl along with water. Now when you will dissolve this salt in the water, जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे देन क्या होगा कि जो इसमें सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है एंड इसमें जो बेस है वो वीक है, देन जो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा उसमें H प्लस की मात्रा ज़्यादा होगी। जब आप डिसॉल्व करोगे ना तो जो H प्लस एक्वस है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ये एसिडिक होगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर बेसिक के केस में व्हेन कोई सॉल्ट जो है वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके बना हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2CO3 reacts with sodium hydroxide NaOH, then the salt produced will be Na2CO3। अब ये क्या है? ये एक बेसिक सॉल्ट है, यानी कि जब इसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर में देन ये बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। फिर से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके बना हो तब वो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिल करके बना हो देन वो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। एंड अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके बना हो देन वो एक बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस केस का। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है? इट्स ए वीक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, जिसका कि pH 14 होता है कॉन्सेंट्रेटेड के केस में एंड pH 13 होता है डाइल्यूट के केस में। द सॉल्ट प्रोड्यूस विल बी सोडियम एसीटेट CH3COONA, along with this water is also produced. So I hope ये portion भी clear हो गया। So with this concept your salt portion is over. Now we are going to study about some of the salts which are easily found in the daily life and we will study about them in detail. So the first salt is common salt. In chemistry it is known as sodium chloride NaCl. How it is produced? अगर हम सोडियम क्लोराइड को लैब में बना रहे हैं देन क्या करेंगे? We will take sodium hydroxide and we will react it with hydrochloric acid and the salt produced will be sodium chloride along with water. ठीक है। बट क्या ये प्रोसेस फिजिबल है? मतलब आप
कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? लैब में तो छोटे छोटे अमाउंट पे प्रोड्यूस किया जाता है, लैब में तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है। सो प्रैक्टिकली जो है इन द फैक्ट्रीज इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है NaCl को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्चुअली ऐसा है कि NaCl ऑलरेडी नेचर में बहुत अमाउंट में मौजूद है, जैसे कि सी वाटर्स में एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में सॉल्ट जो है बहुत अमाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। सो उसे लैब में प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं दैट वो जो सॉल्ट वाटर है उसको प्योरीफाई कर देते हैं एंड उससे जो है NaCl को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट दीज टू मेथड जो कि यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने में। पहला क्या है, फ्रॉम सी वाटर। एक तरीका क्या है, सी वाटर से। नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है दैट वी नो दैट कि सी वाटर में सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है। सो जो सी वाटर है उसको ट्रैप किया जाता है लार्ज पूल्स में। सी वाटर के बहुत सारे पूल्स बनाए जाते हैं, है ना, और इसमें सी वाटर को ट्रैप करके रखा जाता है। सनलाइट जब जैसे पड़ता है देन ये जो वाटर है इसका एवोपोरेशन हो जाता है ड्यू टू सनलाइट, एंड इसमें क्या होता है, सिर्फ सॉल्ट मिलता है ड्यू टू एवोपोरेशन ऑफ वाटर। सारा पानी तो इवोपोरेट हो जाता है और फिर इसमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, एंड इसी सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है टू ऑब्टेन NaCl। दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। नाउ इस मेथड में क्या होता है दैट रॉक सॉल्ट जो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकाला जाता है एंड देन इसको प्यूरिफाई किया जाता है टू ऑब्टेन NaCl। ठीक है, अब ये जो प्योरिफिकेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी नीड नॉट टू वरी। बस हमें इतना ही जानना था दैट सॉल्ट जो है या तो सी वाटर से मिल सकता है या फिर अंडरग्राउंड डिपॉजिट से मिल सकता है। सी वाटर में क्या करते हैं दैट जो समुद्री पानी है उसे हम ट्रैप करके रखते हैं एंड देन इवापोरेशन से हमें रॉक सॉल्ट मिलता है। यहाँ पर क्या है, ये रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट मिलता है एंड फिर उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है टू ऑब्टेन NaCl। सिमिलरली ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी है, रॉक सॉल्ट को निकाला जाता है एंड देन उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है टू ऑब्टेन NaCl। सो आई होप क्लियर है। सॉल्ट का यूज क्या है, सॉल्ट जो है यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे कि NaOH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसके अलावा HCl, इसके अलावा सोडियम मेटल, क्लोरीन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, मतलब इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। सो NaCl जो क्या है एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है टू प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स। दूसरा यूज क्या है दैट ये जो है घर में यूज किया जाता है एज ए नमक, खाने का जो टेस्ट इंप्रूव करने के लिए एज ए फूड इंग्रेडिएंट भी यूज किया जाता है। फूड इंग्रेडिएंट भी यूज किया जाता है टू इम्प्रूव टेस्ट, खाने का टेस्ट इंप्रूव करने के लिए घर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज थ्री कंपाउंड्स वन बाय वन। ठीक है, नाउ वी आर स्टडिंग प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम sodium chloride. So the process is known as chlor-alkali process. chlor-alkali process. अब ये क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है इसे हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो जो रिएक्शन यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaCl। NaCl का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, H2O, ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, इसका क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके जो प्रोसेस है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, which will be dissolved in the solution, and along with this chlorine gas is also released
एट एनोड, क्लोरीन कहाँ पर रिलीज होगा? एनोड पर, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड जो हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ पर रिलीज होगा? ये हो जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। और NaOH क्या है? ये जो है डिपॉजिट इसका जो NaOH का है वो पाया जाता है नियर कैथोड। सो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ये 3 सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं और ये सबको अलग अलग स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट पहले ही कर दिया जाता है कि ये सबको अलग अलग स्टोर किया जाए, है ना। नाउ इसका यूज क्या है? NaOH का यूज क्या है? NaOH का यूज है सोप का प्रोडक्शन में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेकिंग सोडा, दैट बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है। केमिकल का फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ इसका प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसे कि ब्राइन कहा जाता है, NaCl। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, आपको ये टर्म याद रखना है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ठीक है, अब चूंकि सॉल्यूशन है तो पानी तो होगा ही, अलोंग विद दिस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रीटेड। इसमें अगर जब हम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं देन द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 along with this ammonium chloride is also produced। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है अभी तक हमने बहुत बार पढ़ लिया है, दैट एक तो ये एंटासिड की तरह यूज किया जाता है एंड इसे घर में फूड इंग्रेडिएंट की तरह भी इसे यूज किया जाता है ना। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द वॉशिंग सोडा। सो वी आर स्टडिंग अबाउट वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। और अगर इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दिया जाए यानी कि सिर्फ Na2CO3 हो देन इट विल बी नोन एज सोडा ऐश, सोडा ऐश, है ना, ये याद रखना है। नाउ कैसे इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? सो हमने अभी अभी प्रोडक्शन देखा है बेकिंग सोडा का। व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3 इज हीटेड, बेकिंग सोडा को जैसे ही हीट करेंगे, ये सिंबल हीट का है, जैसे ही हीट करेंगे देन सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये सोडा ऐश ऑब्टेन होगा, है ना। अब सोडा ऐश को क्या करेंगे, दैट इसको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में, Na2CO3 इसको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में। ठीक है, एंड देन डिसॉल्व होगा तो देन इस मॉलिक्यूल पे Na2CO3 इस पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाएंगे। दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। कॉमन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसका यूज क्या है? टू मेक द डिटर्जेंट्स। गाइज ये जो जितने भी हम लोग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं एंड फॉर दैट यू कैन इजिली रेफर द NCERT बुक, उसमें अच्छे से दिया गया है। सो हियर आई एम ओनली डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट पार्ट जो कि आपको इजिली अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको इनके यूज और प्रॉपर्टीज भी ढंग से पढ़ने हैं एंड इसके लिए आप NCERT को रेफर कीजिए। द नेक्स्ट कंपाउंड विच वी हैव टू स्टडी इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, है ना। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
it is a base also known as slacked lime, is treated with chlorine gas. Then the compound obtained is calcium oxychloride along with water and this is the bleaching powder. इसका यूज क्या होता है? पानी को डिसइंफेक्ट करने में and also used for cleaning purpose, bleaching purpose. And the next compound about which we are going to study is plaster of Paris. फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, हाफ H2O, हाफ हाइड्रेट। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, इसे क्या कहेंगे? हाफ हाइड्रेट। कंप्लीट नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? लेट्स से यू टेक जिप्सम, ठीक है। जिप्सम क्या होता है? ZYPSUM। इससे प्रोड्यूस करने से पहले ये पढ़ लेते हैं जिप्सम क्या होता है। दैट कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसे कहा जाएगा जिप्सम। सो व्हेन वी टेक जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ gypsum is taken and it is heated at 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट करना है। जैसे ही हीट करेंगे then the product obtained is plaster of Paris। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको, है ना। नाउ ये कंपाउंड जो मैंने ऑब्टेन किया है एंड द फॉर्मूला विच आई हैव रिटन हियर इज, दोनों सेम है, बस मैंने क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब थ्योरेटिकली तो मैंने लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आप ही सोचो दैट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आप कैसे ऑब्टेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। प्रैक्टिकली होता ये है दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए जो फॉर्मूला है वो है 2CaSO4.2H2O। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, अगर इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते समय टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इस बात का ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड ना करे, अदरवाइज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हट जाएगा, है ना, और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा विच इज नोन एज बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रॉपर्टी और यूज भी आप अपने टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया गया है। तो गाइज विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्ट पोर्शन एज वेल। सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है then you should watch the video again, and you can also comment your doubts in the comment section below, and you can also join our telegram channel as well as telegram group so that you can interact with us there. You can download useful content related to this chapter, and you can also post your doubts in telegram, and we will definitely try to solve it. So that's all for today's video. See you soon. Thank you. Good luck.